Okay, okay, okay. So, hello everyone. Hello to all the gorgeous mothers. I welcome you all to my YouTube channel. And once again, hello to all the gorgeous mothers. तो ये सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. I am a chartered accountant by profession and a parenting educator. And why I, being a chartered accountant, I choose to be a parenting educator. What is the reason behind this? When did it all started and how did it all started? So the reason number 1 is I, being a chartered accountant, I realized that it took me 5 rigorous years of hard study, patience, practical training to qualify for a professional degree. Am I right, Suman? Yes, absolutely. But none of these matter to us while we become a mother. No training as such, no curriculum, no degree, nothing. Just it is experiment or a trial, and that too while raising our own child. आप जो भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं आप भी हो सकता है मे बी यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ डॉक्टर और एनी अदर प्रोफेशन और यू आर अ होम मेकर. आपने कुकिंग की भी क्लासेस ली है बट पेरेंटिंग के लिए एज सच कोई भी क्लासेस नहीं होती है ना ही कोई ट्रेनिंग होती है. एंड इट साउंड्स वियर्ड ऑल्सो. बहुत वियर्ड लगता है सुन के कि पेरेंटिंग के लिए कौन पढ़ता है, पेरेंटिंग के लिए कौन सीखता है. But I believe there is a lot to learn more and lot to understand while you raise your own child. Reason number 2. With a fast growing technology, we are all surrounded by the gadgets. And we are creating an environment which is very unsafe for raising our own children and for us to nurture them. चैट जीपीटी, एआई, फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, क्या ये हमारे बच्चों का फ्यूचर संवारने वाला है या उन्हें अंधकार में डालने वाला है? डू यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर? आज से 25 से 30 साल बाद क्या होने वाला है? रीजन नंबर 3. ये तेजी से बढ़ती दुनिया जहां पे हर जगह कंपटीशन है. Right from school to competitive exams to business, jobs and what not. जहाँ हमें हर पल एक डर लगा रहता है कि कहीं हमारा बच्चा पीछे तो नहीं रह जाएगा. And because of these 3 reasons, when I got to know that I'm going to become a mother, I started learning, I started reading books, I took classes on how to teach her, how to feed her, how to handle her, and how to calm her. And this is how all it started from my own parenting journey. And today I'm standing before you all after my daughter is 2 year old now. I can proudly say that my daughter has a zero screen time. Can you believe she has a zero screen time? ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी के जनरेशन के सारे बच्चे टीवी मोबाइल देखते ही मतलब उन्हें आप अवॉइड ही नहीं कर सकते. And once again, I am a proud mother. I can say my daughter, she was just 1 year and 9 months old. She is recognized by India Book of Records, and now again with Asia Book of Records, she is the youngest one to reside the capital city of all the 28 Indian states in just 37 seconds. And really, it is unbelievable. I can say I am a proud mother. लोग मुझसे आते हैं और पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया. आपकी बच्ची तो बॉर्न टैलेंटेड है, बॉर्न जीनियस है. पर मैं आपको बता दूं हर बच्चा बॉर्न जीनियस है, हर बच्चा बॉर्न टैलेंटेड है. दे जस्ट नीड योर टाइम, योर लव, योर केयर एंड सपोर्ट. एंड द थिंग इज दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज देम. नाउ हियर वी हैव सो एक पेरेंटिंग जर्नी का जस्ट एक स्टेप अहेड लेते हुए हम बात करते हैं जहां हम अपनी लाइफ को योगा से कनेक्ट करते हैं. और आज का ये सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली फॉर यू एंड योर किड्स. हियर वी हैव
CA Suman Agarwal with us, yoga expert. Suman and I, we both have become friends in our CA journey, and we both believe that yoga was the turning point in our entire CA journey. So let's talk to you, Suman. Just give your a brief introduction, and we'll start. Hello everyone. So as Akanksha said, we both are chartered accountants. हम दोनों की जर्नी चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम दोनों ने एक दूसरे से चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मिला था और मुझे स्पेशली और रेदर हम दोनों को मुझे और आकांक्षा को सीए बनने में योगा ने बहुत हेल्प किया है। मैं जब Exactly. बहुत छोटी थी रेदर जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी प्रायर टू माय बर्थ मुझे योगा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसीलिए मुझे तब से ही ऐसा लगता है कि योगा ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और आज भी मैं अभी फ़िलहाल मैं हांगकांग में हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और मैं मेरी डेली लाइफ का योगा एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। तो इसीलिए मैं जो भी प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने जो कुछ भी सीखा है आज तक, आई जस्ट वांट टू शेयर ऑल दोज़ थिंग्स विथ यू बिट बाय बिट एंड थोड़े से टाइम में आप मैक्सिमम चीज़ों का बेनिफिट कैसे ले पाएँगे, आज मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। एब्सोल्युटली सुमन, कैसे हम दोनों ने अपना एंजाइटी डिप्रेशन एग्जाम प्रेशर हैंडल किया है अपने सीए एग्जाम्स के दौरान। और मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअल में आज की डिमांड है, जो सारी मदर्स बहुत परेशान रहती है बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, मेहनत तो बहुत करता है, बट परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेशन से हमेशा कम ही रहता है। उसे डाउट यस, रहता है कि मैंने जो पढ़ा है क्या वो मुझे याद है, मैं एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊंगा। एंड देयरफॉर यस, वी हैव सुमन विद अस। शी विल गाइड अस how to improve our concentration, retention power, how to improve the creativity, retention power, memory through this super brain yoga. So are you ओके। all super excited with us to start the session? Please let us Of know in the course, comment I'm section. excited to share my experience, my knowledge. ऐसा बोलते हैं ना कि सोसाइटी ने हमको पीपल अराउंड अस दे हेल्प अस टू अचीव सर्टेन थिंग्स। सो इट्स द टाइम फॉर मी एंड आकांक्षा हम दोनों को टू गिव बैक टू द सोसाइटी जो हमें आज तक मिला है। वी हैव ऑलवेज बीन वेरी 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 लकी टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स इन लाइफ, टू बिकम सक्सेस इन लाइफ। और जैसे आकांक्षा शी इज़ अ प्राउड मदर, उन्होंने अपनी बेटी को शी इज़ 2 इयर्स ओल्ड बहुत कुछ सिखाया है एंड शी इज़ स्टिल मेरी उससे बात भी होती रहती है एंड शी इज़ टीचिंग हर लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। तो चलो सीखते हैं। मुझे बचपन से ही सिखा दिया गया था। तो यहाँ पे जो भी मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, उनका बच्चा भी चाहे वो कितना भी बड़ा हो, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपका बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का है या फिर वो एक टीनेजर है, इट डज़न्ट मैटर। टुडे इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। आज ही वो राइट टाइम है आपके बच्चे को सिखाने के लिए। मैं आपको आज की क्लास में नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ स्मॉल सेशन। इट विल बी लाइक फॉर 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर। इसमें मैं आपको सीरीज ऑफ आसन, प्राणायाम एंड रिलैक्सेशन बताने वाली हूँ। इसके अलावा फिर टू द एंड अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है लाइक 3 साल का है या फिर 3 साल से 1-2 साल आगे-पीछे है, तो उस एज के लिए राइट थिंग क्या होता है? क्या उस एज में हम सूर्य नमस्कार, शीर्षासन ये सब टफ आसन कर सकते हैं? उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो योगा के जो आसन्स होते हैं वो हर एज के अकॉर्डिंग किए जाते हैं और हर एज में अगर बहुत छोटा बच्चा है उसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ 2-3 चीज़ें ही मैं बताऊँगी, जस्ट 3 थिंग्स दैट इज़ द मोस्ट मोस्ट बेनिफिशियल थिंग और वो उसको ज़रूर हेल्प करेगा। फिर जब बच्चा टीनेज में आता है, उसकी स्टडी स्टार्ट होती है, उसकी बॉडी के जो पोस्चर्स रहते हैं, हम जब पढ़ाई करते हैं, हम झुक के पढ़ाई करते हैं, वी ऑलवेज़ लीन डाउन। तो हमारे गर्दन पे दर्द होता है, हमारे बैक पे दर्द होता है, लोअर बैक पे दर्द होता है, अपर बैक पे दर्द होता है और फिर जब बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, वी फील लिटिल लेथार्जिक समटाइम्स। अगर हमारे बॉडी में पेन होगा, तो फिर हम कैसे पढ़ाई करेंगे अच्छे से? अगर हमारा ब्रेन थक जाएगा, हमारा माइंड थक जाएगा, हम शरीर से थक जाएँगे, तो फिर हम कैसे पढ़ाई करेंगे? So all these little things, it contributes to your study and to your success. So without speaking much about what is important and what is not, let's get me to the yoga mat और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
आई विल हैव अ सेशन, तो अगर आपके पास योगा मैट है, आप उसे फटाफट ले आइए एंड प्लीज़ कीप अ कॉपी एंड पेन विथ यू। अल्टीमेटली एक सेशन खत्म होने के बाद व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ व्हाट डू यू टेक अवे, राइट आकांक्षा? हम भी बहुत एग्जैक्टली। कुछ पॉडकास्ट देखते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ कंज़्यूम करते हैं, बट क्या हम उसे अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ़ स्क्रॉल करते हैं। इसीलिए अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इफ यू वांट टू मटेरियलाइज़ व्हाट यू हैव लर्न्ड, then just jot it down and keep it with you forever like an asset. So get your yoga mat, get your copy and pen, and join with me on the yoga mat. And there is a special gift for you all from my side towards the end of the session. So let's begin the session right now. Okay, so let's start. Okay, Yeah, it's clearly visible. Yeah, go ahead. okay. So this is Sukha Asan. The way I am sitting, this is called Sukhasan. We will start with Om chanting and a Gayatri mantra. So गायत्री मंत्र इज नॉट अ हिंदू मंत्र। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये हिंदू मंत्र होता है। मंत्र जो होते हैं वो सिर्फ साउंड्स होते हैं जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड गुड इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे। बिकॉज आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन। जैसे कि मैं अगर आपको बोलती हूँ, राइट आकांक्षा, जैसे मैं आपको बोलती हूँ Mhm. आकांक्षा बहुत सुंदर लग रही है, तो आप चाहे आप अच्छी लग रही हैं, ऑफ कोर्स आप बहुत सुंदर लग रही हैं Exactly. आज, चाहे आप अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, यू विल फील वेरी गुड फ्रॉम विद इन। बट अगर मैं किसी Exactly. को बोल दूं यार एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, वो चाहे जितना भी सुंदर दिखता हो, एक पल के लिए तो उसे लगने लगेगा, उसका मन Mhm. में वो हैप्पीनेस तो नहीं आएगा ना। इसीलिए जो मंत्र होते हैं उसका साउंड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जस्ट सिट इन सुखासन, कीप योर फिंगर्स ऑन ज्ञान मुद्रा और चिन मुद्रा ऑफ योर चॉइस। अगर मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ आपको 100% समझ में नहीं भी आता है, जस्ट फॉलो मी व्हाट आई एम डूइंग, बी रिलैक्स्ड एंड जस्ट डू विथ मी। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। We will chant Om 3 times all together. Breathe in. Now we will chant Gayatri Mantra one time. Chant with me. Om Bhurbhuvah Svah Tatsavituर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Om Shanti 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 Hari Om. So when you start with this, आप पूरा वर्ल्ड से डिटैच होके अपने आसन में अपने प्लेस पे बैठ जाते हैं एंड यू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, विथ योर बॉडी एंड विथ योर माइंड। तो आई एम स्टार्टिंग विथ 2 आसन। दिस आर वेरी बेसिक सिंपल आसन, बट ये जब आप करते हैं आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसमें आपके पोस्चर्स पे होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब आप पढ़ाई करते हैं आप झुक के पढ़ाई करते हैं, इसीलिए जब आप ये 2 आसन करेंगे इससे आपका शोल्डर और आपका नेक रिलैक्स हो जाएगा। जैसे हमारे माइंड में टेंशन होता है वैसे हमारे मस्कुलर टेंशन भी होते हैं, हमारे मस्कुलर टेंशन रिलीज हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Put your fingers on your shoulder, lift your elbow up, and we have to start rotating. क्योंकि आज मैं बस आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आसन से, we will just do it 3 times, but generally आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। Let's start. सांस लेते हुए ऊपर 1, सांस छोड़ते हुए नीचे 1, breathe in 2,
breathe out 2, breathe in 3, breathe out 3, anti-clockwise, breathe in 1, breathe out 1, breathe in 2, breathe out 2, breathe in 3, breathe out 3. आप कोई भी आसन कीजिए, always do it with breath and awareness. Now we will do neck rotation. Start with me. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. 2, 3 and 3. Anti-clockwise. 1, 1, 2, 2, 3 and 3. ये 2 आसन जब आप करते हैं, आप अगर आईज क्लोज करके करना चाहते हैं तो आप आईज क्लोज करके कर सकते हैं, बट अगर आपको डिजी फील होता है तो प्लीज डू इट विथ योर आईज ओपन. सो आफ्टर डूइंग दिस, मैं एक आपको ऐसा आसन बताने वाली हूँ जो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, एंड जब आप वो करते हैं आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील होता है, और अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपकी एंग्जाइटी भी चली जाती है. लेट्स डू इट. सो अभी आप सुखासन में बैठे हुए थे. सो आफ्टर सुखासन, सिट इन वज्रासन like this. Stand on your knees. Just relax your toes. Sit on the toes. Put your hands up or touch your forehead on the ground. अगर आपको ऐसे करने में तकलीफ होती है तो you can spread your knees like this and then you can relax. Focus on your breath. Do it for 5 minutes and then come up, put your hands down. इसका नाम होता है शशांक आसन. बहुत अच्छा आसन है ये. अगर आप ड्यूरिंग द डे कभी भी इसे कर सकते हैं. इफ योर माइंड इज, यू आर फीलिंग लिटिल एजिटेटेड एट दैट टाइम आल्सो यू कैन डू इट. आफ्टर दिस, let us learn how to do TTK, Tadasan, Tiryak Tadasan and Kati Chakrasan. So you can stand with me. Azuman, please let us also know that when it is to be done, preferably कब करना चाहिए, कितने बार करना चाहिए, and what Okay. are its benefits, है ना? Yeah, okay. तो Okay. जैसे मैंने आपको कहा, शोल्डर रोटेशन और नेक रोटेशन यू कैन डू इट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. आसन करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम, बट एक सीक्वेंस होता है आसन करने का. सबसे पहले आपको सो के उठ के मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, फिर आसन करने चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए, फिर मेडिटेशन करना चाहिए. दिस शुड गो इन वन स्लॉट. बट दिस इज 21st सेंचुरी और जरूरी नहीं है कि हम सबके पास इतना टाइम होता है. इसीलिए अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो यू कैन टेक इट एज कैप्सूल्स. कैप्सूल्स मतलब आपके पास अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा टाइम है तब आप मंत्र कर लीजिए, फिर थोड़े समय के बाद यू कैन डू आसन, बट इट मस्ट बी डन बिफोर ब्रेकफास्ट. और अगर आप लंच के बाद इवनिंग समय पे कर रहे हैं तो आइडियली इट इज कॉल्ड 4 आवर्स. बट 4 घंटे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि 4 आवर्स में आपका जो फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. यू कैन फील इट योरसेल्फ कि आपका पेट हैवी लग रहा है या फिर आपका पेट खाली लग रहा है. आपने बहुत कम खाया है तो हो सकता है आपको 4 आवर्स ना भी लगे. तो इधर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट लंच आफ्टर 4 आवर्स, या फिर जब आपको अपना पेट लाइट फील होता है तब आप कर सकते हैं इसे. ठीक है. तो ये सब मैंने जो आपको कहा, ये जो आसन्स होते हैं जब आप करने लगेंगे आपको ग्रेजुअली फील होने लगेगा कि हाउ योर बॉडी इज फीलिंग. इसीलिए कुछ आसन बहुत लाइट होते हैं या कुछ प्राणायाम होता है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं. इसमें ऐसा फूड का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पाइन. स्पाइन के लिए एक बहुत फेमस प्रोवर्ब होता है, चाइनीज प्रोवर्ब होता है कि यू आर एज यंग एज योर स्पाइन. अगर आपका स्पाइन तंदुरुस्त है, इफ इट इज यंग तो फिर आप यंग है, क्योंकि
अगर भले ही आप एज में ओल्ड ना हो बट धीरे धीरे आपका स्पाइन झुकने सा लगता है, इसीलिए स्पाइन को प्रॉपर रखने के लिए, स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए मैं आपको 3 आसन बताऊंगी। इन शॉर्ट वी कॉल इट TTK, T फॉर ताड़ासन। फर्स्ट T फॉर ताड़ासन। अब हम ताड़ासन करने वाले हैं। इंटरलॉक योर फिंगर्स, पुट इट ऑन योर हेड। सांस लेते हुए आप अपने हाथ को रिवर्स कर दीजिए सो दैट योर palm is facing towards the sky. Lift your heels up. 1, breathe out. 1, breathe in. 2, breathe out. 2, breathe in. 3, breathe out. 3. So this was a kind of, we did it in the form of asan. अब हम इसे एक बैलेंस पोस्चर की तरह करेंगे। जब हम इसे बैलेंस पोस्चर की तरह करते हैं, इससे आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। तो हम हाथ को और हील्स को लिफ्ट करके 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे, फिक्सिंग योर आईज ऑन वन सिंगल पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स ट्राई। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। सांस लेते हुए आउट ऊपर, कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वाज मोर ऑफ लाइक डायनामिकली वी आर डूइंग, सेकंड आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए है। पुट योर हैंड्स डाउन। आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स की जरूरत होती है। सो नाउ व्हाट वी डिड वाज स्ट्रेचिंग योर स्पाइन। नाउ वी विल डू साइड बेंडिंग। सो लेट्स डू इट टुगेदर। इंटरलॉक योर फिंगर्स, कीप इट अबव योर हेड। नाउ दिस इज अ साइड बेंडिंग। आप मुझे पहले एक बार देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। सो दिस विल एब्सोल्युटली बी अ साइड बेंडिंग। इसमें सही कैसे होता है, गलत कैसे होता है, आई विल शेयर दैट एज वेल विथ यू। लेट्स स्टार्ट। 1, 1, 2, 2। सो दैट वाज साइड बेंडिंग। बट अगर आप इसे गलत करते हैं या फिर आपसे गलती से हो जाता है तो दिस विल बी काइंड ऑफ लाइक दिस। तो ये मैं सामने की तरफ झुक रही हूँ, दैट इज रॉन्ग। तो आप जब इसे करेंगे आप साइड बेंडिंग को साइड बेंडिंग की तरह ही कीजिए, लाइक दिस। ओके, सो हम 3 टाइम्स साथ में करते हैं। 1, 1, 2, 2, 3 and 3। Put your hands down. ये आपके स्पाइन और आपके बॉडी पोस्चर के लिए टू बेनिफिशियल। जस्ट दिस ग्रुप ऑफ 3 आसन्स अगर आप इसको 10-10 बार करते हैं, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। बट इस आसन का एक और बेनिफिट ये भी होता है, जब सवेरे उठ के आप 2 ग्लास पानी पी के इस आसन को करते हैं, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। नाउ लेट्स डू तिर्यक ताड़ासन। द थर्ड आसन इज तिर्यक ताड़ासन. This gives twisting effect to your spine. Inhale, exhale 1, inhale, exhale 2, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4. So this is Kati Chakrasan. इससे आपके स्पाइन को ट्विस्टिंग इफेक्ट मिलता है। So after Okay. doing these 3 asanas, let us now focus on balancing your mind. आपके माइंड में एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और एक राइट हेमिस्फीयर होता है, दोनों का अलग अलग काम होता है। अ पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन लॉजिकल थिंकिंग, अ पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन क्रिएटिव थिंकिंग, अ पार्ट ऑफ ब्रेन हेल्प्स इन थिंकिंग टेक्निकली। बट लाइफ के कुछ ना कुछ फेज में हमको हर टाइप के ब्रेन की जरूरत होती है। तो अभी हम एक आसन करेंगे जिससे आपका ब्रेन लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस होके रहेगा। So this is Ek Pad Pranam Asan. Let's do it. Lift your leg. Focus on one leg. आप बैलेंस कीजिए पहले। जब आपका बैलेंस हो जाता है, then hold your hand. एक पॉइंट पे गेज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल वी आर होल्डिंग इट फॉर 30 सेकेंड्स। तो आप 30 सेकेंड्स एक पैर से होल्ड करके
एब्सोल्युटली बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। After doing it for 30 seconds, put your hand down, relax your leg. सेम चीज आप दूसरे पैर से ट्राई कीजिए। लिफ्ट योर लेग, इसे आप जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर लेके जाइए। ट्राई टू फाइंड योर बैलेंस। When you find your balance, fold your hands. After doing it for say 30 seconds, relax your hand and relax your leg. ये आसन होता है एक पाद प्रणाम आसन। अब क्वेश्चन है इसे हमको कितने बार करना चाहिए। सो जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो हो सकता है आपके लिए 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स थोड़ा हार्ड हो सकता है बहुत इजीली 10 मिनट्स भी कर सके। बट आइडियली इफ यू डू इट फॉर से 1 मिनट टू 2 मिनट एंड डू इट फॉर 3 राउंड्स, तो ये आपके लिए सफिशिएंट होता है। और दिस विल, अब जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे साइक्लिंग तुरंत सीख जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे बैलेंसिंग चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा भी होगा आकांक्षा, कुछ बच्चे चलते-चलते गिर जाते हैं जल्दी से। हाँ, सारे बच्चों के साथ ऐसा एग्ज़ैक्टली। नहीं होता है, बट कुछ बच्चों के साथ तो होता है ऐसा। तो हम जब ये सब आसन करते हैं, ये सब प्राणायाम करते हैं, तो ये उनके बॉडी को और उनके माइंड को डेवलप करता है और उनको हेल्प करता है ओके। कि वो अपने बॉडी पोस्चर्स को प्रॉपर मेंटेन कर सके और अपना बैलेंस मेंटेन कर सके। ठीक है? तो आफ्टर डूइंग दिस So आसन, नाउ ideally it लेट्स should गो। be done by everyone. Ideally हर किसी यस। को ये एक्सरसाइज ये योगा करना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि Absolutely. हर एज का एक अपना बेनिफिट होता है। अगर वो बहुत छोटा-सा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा लाइक 6 टू 10 इयर्स है, बट कुछ लोग चलते-चलते ही गिर जाते हैं, ऐसा कहीं से हुँ, टकराते भी नहीं हैं, तो उनके बॉडी पोस्चर के लिए काम आता है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं, तो बीइंग अ स्टूडेंट हमको माइंड का बैलेंस चाहिए होता है, तो हमको वो बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, माइंड बैलेंस तो आपको लाइफ के हर एज में चाहिए होता है। सो इन दैट वे इट हेल्प्स एग्ज़ैक्टली। इन एवरी एज। यू आर अ मदर आल्सो, यू शुड डेफिनिटली डू इट। सो नाउ हुँ, कमिंग टू द थर्ड आसन। थर्ड आसन है सूर्य नमस्कार। इसके बेनिफिट्स के बारे में तो मैं आपको जितना भी बताऊं मेरे लिए उतना कम है। सारे बच्चे आजकल के पेरेंट्स को मैंने देखा है, मैंने अपने भी घर पे बहुत बार या अपने रिलेटिव्स के घर पे भी देखा है कि बोलते हैं आलसी हो गया है, ये बात बोलने से सुनता नहीं है, सच हुँ, काइंड ऑफ थिंग्स। तो सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो अंदर से आपकी जो लेथार्जी होती है वो चली जाती है, आपका एनर्जी बूस्ट होता है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और यू फील रिफ्रेश्ड फिजिकली एंड मेंटली। इसमें दिस इज अ ग्रुप ऑफ 12 पोस्चर्स। इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, बैकवर्ड बेंडिंग भी है और हल्का सा इन्वर्जन भी है। हल्का सा इन्वर्जन का जो बेनिफिट है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। बट दिस सूर्य नमस्कार बीइंग अ ग्रुप ऑफ 12 आसन्स, लेट्स डू दिस फर्स्ट। एंड अगर आप मेरे साथ करते हैं तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा ज़रूर है। बताएँ। लेट्स डू विथ मी। मैं आपको ब्रीदिंग के साथ बताने वाली हूँ, तो ट्राई टू सिंक्रोनाइज योर आसन विथ योर ब्रीदिंग। 1, breathe in, breathe out. 2, breathe in. 3, breathe out. 4, breathe in. अभी मैंने लेफ्ट लेग को आगे रखा हुआ है। 5, breathe out. Try to touch your heels on the ground and make a mountain of your body. 6, hold the posture. 7, breathe in. 8, breathe out. 9, again left leg between both the hands, आपके दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। 9, 10, touch your toe. 11, breathe in. 12, breathe out. तो ये मैंने आपको एक बार करके दिखाया है। जैसे अभी हमने जब आसन किया
दोनों हाथ के बीच में आपका पैर था, वैसे आप जब सेकंड टाइम करेंगे, दोनों हाथ के बीच में आपका राइट लेग रहेगा एंड दैट कंप्लीट्स 1 राउंड। एक बार हम लेफ्ट बॉडी साइड से करते हैं, एक बार राइट बॉडी साइड से करते हैं एंड दैट कंप्लीट्स 1 राउंड। अब क्वेश्चन है Okay. आपको कब करना चाहिए? जैसे इसका नाम है सूर्य नमस्कार, द बेस्ट टाइम इज़ जब सनराइज़ होता है तब करना चाहिए। ठीक है, अगर हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप जब अपना आसन करते हैं, आपके आसन के सीक्वेंस के साथ आप इसको ज़रूर रखिए। इससे आपका बॉडी फिज़िकली बहुत फिट रहता है। टीवी पे भी आजकल आप सुनते होंगे, मैंने तो बहुत सुना है, अगर आपको 100 इयर्स तक फिट रहना है, तब सूर्य नमस्कार Well 100 said. बार। ठीक है, 100 बार करना पॉसिबल नहीं होता है। स्टार्ट विथ जस्ट 3 राउंड्स। 3 राउंड्स का मतलब होता है एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, 1 होता है। आप 3 राउंड से स्टार्ट कीजिए। आइडियली आप एवरी वीक एक-एक राउंड्स बढ़ाइए एंड देन यू कैन डू 6 टू 12 राउंड्स एवरी डे। उतना आपके लिए सफिशिएंट भी होता है, परफेक्ट भी होता है। अगर आपको अच्छा लगता है करना, आप और ज़्यादा कीजिए। आप ज़्यादा करेंगे, आपको ज़्यादा भी बेनिफिट होगा। बट 6 to 12 rounds is sufficient for you. The most important thing is आप ब्रेथ के साथ इसे ज़रूर सिंक्रोनाइज़ कीजिए। अगर आप सिर्फ़ आसन को आसन की तरह कर लेते हैं, तो वो योगा नहीं कहलाता है। वो एक बस फिज़िकल वर्कआउट टाइप का होता है, तो आप ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ इसे ज़रूर कीजिए। सुमन, आई सूर्य विल लेट यू नो, नमस्कार। हर दिन की मेरी शुरुआत सूर्य नमस्कार से ही होती है। ओह वाओ! एवरी डे। दैट्स ग्रेट आकांक्षा। ग्रेट, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट। देखिए ओके। आकांक्षा की बच्ची अभी 2 ही साल की है, मुझे वो कितनी फिट लग रही है। शी ऑलसो योगा एंड प्राणायाम एवरी डे आई इज़ इट आकांक्षा? या एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी अगर गुड। वो किसी अपनी भी दिन मिस बॉडी हो शेप जाता है तो इट पूरा इज वापस लाइक कि कुछ तो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज आज दिन की मिस हो गई है। ये डेली एग्ज़ैक्टली। रूटीन, डेली हैबिट हो चुका है अब ऐसा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हुँ। आपको पता है आकांक्षा, जब मैं पढ़ाई भी करती थी, एट दैट टाइम जैसे हमको मेबी किसी को कुछ बैड हैबिट्स होते हैं, जब तक वो कंज़्यूम नहीं करते हैं, दे फील वेरी कुछ तो नहीं किया है लाइफ़ में वैसा। तो हाँ, आपके साथ है, मेरे एग्ज़ैक्टली। साथ भी वैसा है। अगर मैं तो जब पढ़ाई भी करती थी, तब भी अगर मैं कभी योगा नहीं करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आज कुछ मिसिंग है। क्रेविंग होती है हुँ, योगा के अंदर से करने में, बिकॉज़ दिस थिंग एग्ज़ैक्टली। रिलीज़ फील गुड हार्मोन्स, और फील गुड हार्मोन्स के लिए ही वी क्रेव फॉर एवरीथिंग। जब हम चॉकलेट खाते हैं, तब भी फील गुड हार्मोन रिलीज़ होता है, और इसीलिए जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, योगा करते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, डोपामाइन होता है, ये सब फील गुड हार्मोन्स होते हैं और ये आपके बॉडी से रिलीज़ होते हैं। इसीलिए आपको ये हुँ, सब ज़रूर करना चाहिए। नाउ सूर्य नमस्कार जब आप कर लेते हैं, इसके बाद एक होता है शवासन। शवासन वो होता है रिलैक्सेशन पोस्चर, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, और मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ कि शवासन को सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। जस्ट lie down on the mat. Like, Suman, you are not visible. Actually, you are not visible clearly. okay, If you can shift your phone a bit, that will be clearly visible to us. yes, I'll do that. Yeah, Okay, fine, fine now. Akansha. Hmm. So you just lie down flat. You just lie down flat. आप अपने दोनों पैरों को अलग रखिए, like 2 feet apart. अपने हाथों को भी बॉडी से अलग रखिए। Palm facing towards the sky. Surrender whole of your body to the ground. सूर्य नमस्कार करना जितना इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना होता है। Just relax like this, focus on your breath. अभी-अभी आपने सूर्य नमस्कार किया होगा, तो you should be breathing heavily. आपकी सांसें तेज हो गई होगी, तो आप शवासन करके अपने ब्रेथ को नॉर्मल कीजिए। Feel good about yourself कि वाओ, आज आपने फिर सूर्य नमस्कार किया है। Every day is a new day
जिस दिन आपको करना है बस 1 डे रहता है। तो ये जब आप करते हैं, नाउ यू फील वेरी रिलैक्स्ड। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट आसन, मैं आपको यहीं से बताने वाली हूँ। ये होता है रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल में क्या होता है, आप जब पढ़ाई करते हैं, लेट मी फर्स्ट टॉक टू यू, आप जब पढ़ाई करते हैं, हम नीचे झुक के पढ़ाई करते हैं, राइट? तो आपका जो शोल्डर होता है वो टेंस्ड हो जाता है, आपका जो लोअर बैक पेन होता है वो भी टेंस्ड हो जाता है। ऐसा लगता है थोड़ा सा भी कोई मालिश कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा, बट ऐसा होता नहीं है कि वी कैन गेट समवन मालिश। स्पेशली हम जब स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारे पास, हम बस पढ़ाई कर ले हमारे लिए बहुत है। तो ये मेरा फेवरेट आसन था। इस आसन को करने से मेरा बैक और मेरे जो शोल्डर्स हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाते थे और मुझे एक बहुत अच्छा मसाज मिलता था। तो अभी देखते हैं इसे कैसे करते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक एंड रोल। लेट्स ट्राई। तो हग योर नीज। इसे जब आप स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपका जो मोमेंटम है वो एक बार में ना बने, बट ग्रेजुअली इट विल हैपन। सो लेट्स जस्ट ट्राई इट। So this is the आसन। ये जब आप करते हैं, आप जब लेटते हैं तो होल ऑफ योर बॉडी इज ऑन योर शोल्डर्स, और जब आप उठते हैं तो आपका शोल्डर से लेके पूरा जो स्पाइन है इट इज गेटिंग रिलैक्स्ड। वो फ्लोर में आपके योगा मैट में इसका मसाज हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड आसन, ये आपको जरूर जरूर से करना चाहिए। दिस इज रॉक एंड रोल। इसके बाद मैं एक आपको ऐसा आसन बताने वाली हूँ जो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हम पूरे समय खड़े रहते हैं तो हमारा बॉडी का जो ग्रेविटी होता है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है। तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसा आसन बताने वाली हूँ जिससे आपके ब्रेन का में एनरिच फ्लो ऑफ ब्लड होगा और ऑक्सीजन मिलेगा, और ये करने से आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। लेट्स ट्राई डूइंग। एंड दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। जो भी मम्मियाँ देख रही हैं, प्लीज आप खुद करिए। आपको देखकर आपका बच्चा खुद ब खुद इंस्पायर हो जाएगा ये करने को। Yes. So you just lie down flat. अगर आपको चाहिए तो आप अपने टॉप को पैंट पे टक कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कंफर्टेबली डू इट। पैर को लिफ्ट करके एडजस्ट कीजिए और होल्ड योर वेस्ट। जो टो है वो आई लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ आपके आई लेवल तक ही होना है। Chin should be touching the chest. Focus on balance, focus on breath. Hold for like 20 seconds in the beginning. Slowly come down. तो ये होता है सर्वांग आसन। ये आप जब करते हैं आपके माइंड में ये रिवर्स ब्लड फ्लो हो रहा है। आपने हेडस्टैंड सुना होगा, स्थिर शासन सुना होगा, उसके जो भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो आपको सर्वांग आसन करके ही मिल जाता है। स्थिर शासन थोड़ा एडवांस आसन होता है, हर कोई उसे नहीं करता। तो आप सर्वांग आसन कीजिए और यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ शीर्षासन। तो ये हो गया आसन का सीरीज जो आपको करना चाहिए और आपके लिए ये बहुत अच्छा भी रहता है। और इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ 2 प्राणायाम। जैसे मैंने आपको कहा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इट वर्क्स एक्सीलेंटली, वैसे ही नाड़ी शोधन ये आसन में होता है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से डायरेक्ट बेनिफिट आपके ब्रेन में होता है और इससे भी आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है।
मैं आपको बताने वाली हूँ इसको परफेक्टली कैसे किया जाता है। तो आप मेरे साथ इसे ट्राई कीजिए। कितने बार करना चाहिए? मैं आपको 1 राउंड करके दिखाती हूँ, वैसे ही आपको 10 राउंड्स तो इसे करना ही करना चाहिए। तो व्हेन यू शुड डू इट, तो आई वुड लाइक टू से जब आप मॉर्निंग पे करते हैं, आपका आसन का सीरीज़ खत्म हो हम्म। जाता है। उसके बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है आसन के बाद प्राणायाम करना, क्योंकि आप और बेटर तरीके से कर सकते हैं, आपका माइंड ज़्यादा फ़ोकस्ड होता है जब आप आसन कर लेते हैं। इसीलिए आसन प्राणायाम को आसन के बाद करना चाहिए। तो ओके। लेट्स सी हाउ टू डू इट। आपने 2 सुमन, कैन हैं। यू प्लीज ऑल्सो एलाबरेट अस कि डिफरेंस क्या होता है आसन और प्राणायाम्स के बीच में, क्या डिफरेंस है? ओके, तो आसन जो है, आसन में हम नॉर्मली जैसे योगा होता है, योगा में बहुत सारे कैटेगरीज़ होते हैं। हम अगर हम्म। सारी कैटेगरी को मिला के वी कॉल इट इंटीग्रेटेड योगा। तो योगा में हठ योग होता है, कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, क्रिया योग होता है, राजयोग होता है। तो ये सब अलग-अलग होता है। राजयोग ब ज़्यादातर हम राजयोग जो बीके शिवानी वाला जो ग्रुप होता है, ओम ओके। शांति, उनको हम देखते हैं, दे आर मोर इनटू राजयोग एंड मेडिटेशन। कर्म योग जो हम्म। होता है, उसका एक अलग थियरी है, वैसे ही हठ योग में आसन आते हैं। जब आसन हम करते हैं, आसन का एक लाइन होता है, स्थिरम सुखम आसनम। इसमें ये होता है कि आप कोई भी आसन करते हैं, वो आप बॉडी के एक पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं एंड यू फील कंफर्टेबल इन दैट। स्थिरम मतलब स्टेबल, सुखम मतलब कंफर्टेबल, आसनम इज़ आसन। तो आसन जो होते हैं, वो बॉडी के डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चर्स होते हैं, जिसमें हम स्टेबल होके कंफर्टेबल फील कर सकेंगे। और प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम कम्स फ्रॉम द वर्ड प्राणा। प्राणा इज़ प्राण, प्राण मतलब होता है प्राण शक्ति। अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आकांक्षा भी बोल रही है, सुन रही है, तो वी ऑल आर हियर। हमारे अंदर प्राण शक्ति है, इसीलिए ही हम बोल पा रहे हैं। तो जब प्राणायाम करते हैं, दिस इज़ मोर अबाउट ब्रेथ। तो ब्रेथ के थ्रू से हम हमारा प्राण शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कोई बॉडी के ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होते हैं, वी जस्ट फोकस ऑन ब्रेथ एंड दिस इज़ मोर इंटू फोकसिंग योर माइंड ऑन ब्रेथ एंड अवेयरनेस। ठीक है? ओके। ओके, सो चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। आप अपने दोनों फिंगर्स को फोरहेड पर रखिए, लाइक दिस। Thumb will be used to block your right nostril and ring finger will be used to block your left nostril. Let's do it. सबसे पहले आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए। ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट, block your left nostril, breathe out from the right, breathe in from the right and breathe out from the left. दिस कंप्लीट्स 1 राउंड। वैसे आपको 10 राउंड्स करना है। अब इसमें ब्रीदिंग कितनी लंबी होनी चाहिए? सो टू स्टार्ट विथ, अगर आप 3 सेकंड्स भी ब्रीथ करते हैं तो इट्स ओके। आप 3 सेकंड सांस लीजिए और 3 सेकंड सांस छोड़िए। सो वी कॉल इट 1:1 रेशियो। जब आप करते हैं या फिर आपका ब्रेथ नॉर्मली बहुत अच्छा है, तो आप 5 सेकंड्स ब्रीथ इन कीजिए, 5 सेकंड्स ब्रीथ आउट कीजिए। अगर आपकी लंग्स और स्ट्रॉन्ग है, आप 7 सेकंड्स ब्रीथ इन, 7 सेकंड्स ब्रीथ आउट कीजिए। बट इट शुड बी अ कंफर्टेबल नंबर। आपको स्ट्रगल करके उतने सेकंड्स पे नहीं करना है। ठीक है? तो 1:1 रेशियो में आप कर सकते हैं। आप थोड़े दिन 1:1 रेशियो में स्टार्ट कीजिए, लेकिन एज़ द डेज़ गोज़ बाय आप थोड़ा और एडवांस कर सकते हैं। एडवांस में आपको कुंभक लगाना होता है। कुंभक मतलब रिटेंशन ऑफ ब्रीथिंग। इसमें कैसे करेंगे? हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर डूइंग इट फॉर 5 सेकंड्स। आप 5 सेकंड साँस लीजिए, 5 सेकंड्स तक ब्रेथ को होल्ड करके रखिए, कुछ मत कीजिए और फिर 5 सेकंड्स में रिलीज़ कीजिए। फिर 5 सेकंड्स में ब्रीथ इन कीजिए, 5 सेकंड होल्ड करके रखिए और 5 सेकंड ब्रीथ आउट कीजिए। दिस कंप्लीट्स 1 राउंड। तो ओके। धीरे-धीरे जब आप कंफर्टेबल होंगे, एवरीथिंग शुड बी अ कंफर्टेबल प्रैक्टिस। बस आप एकदम आराम से जितना कर सकते हैं, उससे एक स्टेप आगे चलिए। जिम नहीं है, वर्कआउट नहीं है कि आपके शरीर को एकदम
तोड़ के, मोड़ के, कैसे भी करके कराएँगे, ऐसे नहीं किया जाता है योगा में। योगा में बहुत कंफर्टेबल होके एक-एक स्टेप आगे बढ़ के यू कैन गेट बिग अचीवमेंट्स, ठीक है? So after doing Absolutely. Pradeshodhan Pranayam, I'll tell you how to do Bhramri Pranayam. ये दोनों फिंगर्स को दीज आर इंडेक्स फिंगर और ये आपके कान के फ्लैप हैं दीज आर। तो आपको फिंगर को पूरा कान के अंदर मत डालिए, आप फ्लैप के थ्रू से इसे ब्लॉक कीजिए इस तरह से। सो डू इट विथ बोथ योर लेग्स। एल्बो नीचे मत रखिए, expand it, expand your chest, breathe in, and while breathing out you have to make humming sound like a bee. ये मैंने आपको एक बार करके दिखाया है। Like this you have to do 10 times. 10 to 15 times is ideal. इसे करने के लिए भी हार्डली आपको 2-3 मिनट लगेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी ग्रुप ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओम चैंटिंग टू भ्रामरी प्राणायाम बताया है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा ही करेंगे या फिर अगर आप डेली नहीं करते हैं, आप इसमें से चूज़ कीजिए और आप कीजिए। आप 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा पैकेज कर सकते हैं और इससे आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यू जस्ट ट्राई इट फॉर अ मंथ। आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए यू जस्ट ट्राई इट फॉर अ मंथ और 2 और फिर आप अपने आप को चेंज होता हुआ देखेंगे और जब आप अपने आप को चेंज होता हुआ देखेंगे, आप हमें ज़रूर कन्वे कीजिए। वी विल बी द मोस्ट हैप्पिएस्ट पर्सन टू नो कि हमारे साथ जुड़ के आपको कुछ तो फ़ायदा हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस आसन एंड प्राणायाम, लास्ट में 5 मिनट्स के लिए या 2 मिनट के लिए बस अपने प्लेस पे कंफर्टेबली बैठ जाइए एंड डू मेडिटेशन। मेडिटेशन में फोकस ऑन योर ब्रेथ। हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। दैट्स इट। आप इस जगह पे फोकस कीजिए। हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वी कैन फील आवर ब्रेथ हियर। सो इस मेडिटेशन में द होल ऑफ योर अवेयरनेस शुड बी ऑन योर ब्रेथ एंड फीलिंग योर ब्रेथ हियर। Do it for 2 minutes and then do palming. Rub your palm. वो जब हीट हो जाता है थोड़ा सा, put it on your eyes and with a big smile on your face, open your eyes. तो ये होता है पूरा पैकेज। इसे करने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है और इतना टाइम तो आपको अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स आकांक्षा, हमने बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना है ना, हमारा बेटा तुम फोकस नहीं करते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, Absolutely. पढ़ते उठ के चले जाते हो, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है क्या पढ़ाई में? मारने-पीटने से थोड़ी ना ध्यान लगने लगेगा, नहीं लगेगा, Exactly. मारने से कैसे ध्यान लगेगा, राइट? तो पेरेंट्स को खुद भी एजुकेट करना चाहिए, खुद को स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। आप उन्हें मार के हेल्प कभी नहीं कर सकते। आकांक्षा, आप अपनी बेटी को मारती है क्या कभी? आज तक है क्या? नहीं, वो कभी नहीं, कभी नहीं मारती, वो तो तेज आवाज़ में भी नहीं बोलती है, राइट? तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको खुद पता होगा कि सही तरीके से कैसे एजुकेट किया जा सकता है, आप आपको भी हेल्प कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को भी हेल्प कर सकते हैं कि वो सही डायरेक्शन में कैसे देखें। आपको कितना अच्छा लगेगा, आप सोचिए कि आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत फ़ोकस्ड रहे, बहुत पढ़ाई में इंस्पायर बहुत रहे, अच्छा हो इंस्पिरेशन फ्रॉम विदिन। सबसे। आकांक्षा, आप एग्ज़ैक्टली। बताना चाहेंगे कि अंदर से इंस्पिरेशन कैसे आती है? वो कोई बोलता है क्या कि पढ़ाई नहीं, कर लो? नोबडी कैन फोर्स यू। कोई पढ़ाई करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। स्कूलिंग तक तो भी ठीक है, बट आफ्टर दैट जो भी आपका करियर है, प्रोफेशन है, आपको खुद को मेहनत करनी है, आपको खुद को डेडिकेट होना है, डिवोट होना है। एग्ज़ैक्टली। तो आकांक्षा ने भी जैसे यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया है, मैंने भी अपना एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया है योगा विद आराधना करके। ये सब अंदर से इंस्पिरेशन आते हैं। मुझे योगा एग्जैक्टली। सिखाने का शौक है। मैं आपको बहुत 1 ही मिनट आपका टाइम लूँगी, मैं बताऊँगी। मैं जब फर्स्ट टाइम सीए का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी एंड आई वाज़ ऑलवेज़ अ ब्राइट स्टूडेंट
और मुझसे वो एग्जैक्टली। फेलियर नहीं सहा जा रहा था। आई वाज़ नॉट एबल टू टॉलरेट इट कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ? बट लाइफ में कि हर फेज़ में कभी न कभी किसी न किसी को फेल होना रहता है। मुझे भले ही बचपन से योगा सिखा दिए थे, बट जब मैं फेल हुई मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होने लग गई। और मैं जब योगा की मुझे मेरा मन शांत होने लगा, मेरी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने लगी, मेरी एफिशिएंसी इम्प्रूव होने लगी और आज मैं आपके सामने देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हूँ। आकांक्षा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गई थी। उसका ब्रेन पहले से ही शी वाज़ वेरी फोकस्ड और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, शी हैड द राइट टेक्निक्स। तो लाइफ में कभी आपको सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर मिलेगा। तो आप अगर योगा से जुड़े रहेंगे, तो फिर आप अपने एग्जैक्टली। बच्चों को भी इंस्पायर कर सकते हैं और खुद भी इंस्पायर्ड रह सकते हैं। जैसे कि आकांक्षा ने अभी आपको बोला कि आप खुद करेंगे, तो आपके बच्चे आपको देख-देख के करेंगे। यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन देम। आप एक एटमॉस्फियर क्रिएट कीजिए, जो आपके बच्चे पे इम्पैक्ट करेगा। राइट आकांक्षा? एग्जैक्टली सुमन, ये कहते हैं ना कि 101% इट इज ट्रू कि आप जो करते हैं बच्चा वही देख कर सीखता है। आप जो कहते हैं वो नहीं करेगा, बट आप जो करेंगे वो जरूर वो करेगा। तो सभी एग्ज़ैक्टली। पेरेंट्स को, सभी मदर्स को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुद स्टार्ट करिए। बच्चा खुद आपको देखकर इंस्पायर होगा, खुद से करने को स्टार्ट करेगा। यस। तो सो दिस अभी वाज अ आपने वंडरफुल। यस, हम्म। अभी आपने जो भी सीखा है, अगर आपको एक भी हमारी बात समझ में आई है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारी जरूर कौन-सी बताएं। बात आपको सबसे अच्छी लगी और आप अपनी लाइफ में क्या फ़ॉलो करने वाले हैं। जस्ट लेट अस नो, वी विल बी वेरी, वेरी ग्लैड टू नो कि आपको इस हमारी बातों में से अगर एक भी चीज़ इंस्पायर किया है, जस्ट लेट अस नो। जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप सुमन को भी फॉलो कर सकते हैं उसके इंस्टाग्राम पेज पे। बहुत सारी योगा टेक्निक्स आपको मिल सकती है सुमन के थ्रू। आप मुझसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं आपके पेरेंटिंग चैलेंजेस को आई ट्राई टू रिजॉल्व, आई कन्वर्ट योर पेरेंटिंग चैलेंजेस इनटू सेलिब्रेशंस। और एज आई प्रॉमिस्ड इन द बिगनिंग कि मैं आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाली हूँ मेरे साइड से एंड में। तो क्या एनी गेसेस? सुमन, कुछ गैस कर सकती हूँ मैं क्या गिफ्ट देना चाह रही हूँ अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को और स्पेशली मदर्स को? सीक्रेट टिप कुछ आप देना चाहती हैं आकांक्षा, जिससे एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा एग्जैक्टली। होने वाला है सबको? हाँ, एग्जैक्टली, एक ऐसा सीक्रेट टिप जो हर मदर्स को फॉलो करनी चाहिए। नंबर वन इज फिक्स द स्टडी टाइम एंड स्टडी प्लेस ऑफ योर चाइल्ड। आप घर पे हर दिन बच्चे का एक स्टडी टाइम फिक्स कर लीजिए और उसकी स्टडी प्लेस, मे बी इट इज अ 7 o'clock इन द इवनिंग और 8 o'clock इन द इवनिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा जिस तरीके से लंच का टाइम फिक्स होता है, डिनर का टाइम फिक्स है, स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, वैसे ही घर पे भी पढ़ने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। और एक प्लेस पता चल रहा है बच्चा कभी लिविंग रूम में पढ़ रहा है, कभी बेडरूम में पढ़ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। एक फिक्स टाइम और एक फिक्स प्लेस, ताकि वो समय होते ही बच्चे को समझ में आ जाए और उसका माइंड इंस्ट्रक्शन दे दे कि नाउ इट इज माई स्टडी टाइम, आई हैव टू स्टडी। एंड ग्रेट, नंबर टू ग्रेट। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सब ने ही फॉलो किया होगा, राइट सुमन? हमने अपने सीए एग्जाम्स के दौरान, उससे पहले अपने स्कूल्स के दौरान भी हमने इसे फॉलो किया होगा कि जब भी हमारा जो स्टडी टाइम है उससे पहले 10 to 15 मिनट्स बिफोर हम या तो टीवी देख रहे होते हैं या हम कुछ गेम्स खेल रहे हैं या स्पोर्ट्स में एंगेज हैं, बाहर हैं, और आप 10 to 15 मिनट्स पहले ही उस सीट से डिस्कनेक्ट हो जाइए, ताकि ओके। वो 10 to 15 मिनट्स आप थोड़ा शॉर्ट वॉक कर लीजिए, एक फुल ग्लास ऑफ वाटर पी लीजिए, जिससे आपका बॉडी मूवमेंट भी हो गया और आपका ऑक्सीजन फ्लो का फ्लो जो है, ऑक्सीजन का फ्लो वो माइंड में बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन प्रोवाइड 100% कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टडीज। तो ये वंडरफुल, दोनों वंडरफुल। चीज मैंने फॉलो करी और आई होप सुमन हम दोनों ने मिलकर ये फॉलो किया एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ रिजल्ट टुडे कि हम दोनों एक सक्सेसफुल वंडरफुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और हम दोनों कोशिश करें कि कुछ एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करें मदर्स की लाइफ में, लोगों की लाइफ में, something यस, we can put a impact on your life. एब्सोल्युटली। दैट वाज़ अ ग्रेट, ग्रेट टिप आकांक्षा। ये तो
even if I'm not a student और we both हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये टेक्निक हम्म। तो हमको डेफ़िनेटली काम आने वाली है, चाहे हम कुछ भी करेंगे। बस पढ़ाई के लिए हो या फिर लाइफ़ में आगे बढ़ते रहने के लिए हो। दैट वाज़ अ एग्जैक्टली। वंडरफुल, वंडरफुल टिप आकांक्षा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हुँ, टाइम आप कौन सा सेशन हमारी तरफ से चाहते हैं प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपकी जो डिमांड है हम वो फुलफिल कर पाएं और आपके साथ वो लेकर आ पाएं। ग्रेट, अगर आप ग्रेट। मेरे चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां मैं आपसे मिलते रहूंगी और आपको मिलता रहेगा बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स फ्रॉम माय ओन रूम ऑफ एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर योर किड्स, ब्रेन जिमिंग एक्सरसाइजेस, एग्जाम स्ट्रेटजीज प्रिपरेशंस और बहुत से पावरफुल वीडियोस मैंने खुद अपलोड किया है अपने चैनल में। कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। यू कैन जस्ट गो आउट एंड चेक देयर। ग्रेट, ग्रेट। मैंने तो देखा भी आकांक्षा, दे आर वेरी, वेरी वंडरफुल। बहुत थैंक यू, छोटे-छोटे थैंक यू। ईज़ी और सिंपल टेक्निक्स बताती है आकांक्षा एंड दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन, राइट आकांक्षा? या। ग्रेट। तो आकांक्षा हमने आज जितना भी हम्म। सीखा है, एक बार क्विक रिकैप कर ले क्या कि हमने या क्या-क्या एग्जैक्टली, कुछ-कुछ या। सीखा है हम्म। सो दैट हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट हो जाएगा उससे? वी या स्टार्टेड आवर फास्ट। सेशन विथ ओम चैंटिंग। तो मंत्र में हम्म। हमने 2 चीज़ किया, ओम चैंटिंग और ओम भूर्भुवः स्व। मैंने आपको एक चीज़ लास्ट में बताने बोला था। मैंने आपसे बोला था कि मैं बताने वाली हूँ, जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और योगा कौन से एज से करनी चाहिए। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट 6 टू 7 इयर्स एक परफेक्ट टाइम होता है जब बच्चा को योगा करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? कभी-कभी आपने देखा है कि बच्चे शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन मन से छोटे रहते हैं। कभी-कभी वो मन हम्म। से तो बड़े हो जाते हैं, बट शरीर उनका ग्रो नहीं करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा का बॉडी और माइंड अपने ऐज के अकॉर्डिंग ही ग्रो करे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ बच्चे हम्म। नेचुरली ग्रो कर लेते हैं, दे आर गॉड गिफ्टेड, वेरी, वेरी गुड। बट अगर एक भी बच्चा नहीं कर पाता है, तो उनके मम्मी-पापा को टेंशन होती है। दे फील स्ट्रेस्ड कि अरे! ये तो बच्चा मन से ग्रो नहीं हुआ है, इसको तो इस एज के हिसाब से मैच्योरिटी नहीं है या इसका बॉडी ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको सूर्य नमस्कार बताया है योगा में। सूर्य नमस्कार एक बच्चे को ज़रूर करना चाहिए, उससे उस बच्चे की फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट अपने एज के हिसाब से होती है। दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। जिन बच्चों का हम्म। नहीं होता है, आप उनके पेरेंट्स से पूछिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है, दे विल अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो ये बात हो गया और बच्चा जब बहुत छोटा रहता है, जब 3 साल का होता है, तब आप उसे मंत्र में इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर ऑर्गेनिकली या फिर अगर आप और भी कोई मंत्र उसे सिखाना चाहते हैं, सिखाइए। बट ओम एक यूनिवर्सल मंत्र होता है, आप ओम उसे हमेशा सिखा सकते हैं। तो बच्चा जब स्टार्ट करता है, आई रिकमेंड 3 थिंग्स, ओम चैंटिंग, गायत्री मंत्र एंड द थर्ड वन इज़ नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 3 चीज़ उस बच्चे को ज़रूर करना चाहिए एंड देन इंट्रोड्यूस हिम और हर टू सूर्य नमस्कार। ये सब चीज़ें इज़ इम्पोर्टेंट और 6 या 7 साल होता है तब उसे ज़रूर स्टार्ट कर देना चाहिए योगा। ठीक है? तो ओके। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सो वी स्टार्टेड इट विथ ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के बाद हमने मंत्र किया था। मंत्र के बाद हमने 2 रोटेशन किए थे, एल शोल्डर का रोटेशन और हेड का रोटेशन, जिससे हम्म। आपका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो प्रॉपर हो जाता है। इसके बाद मैंने आपको करवाया था वज्रासन में आप बैठे थे, दोनों लेग्स को फ़ोल्ड करके। वज्रासन में बैठ के मैंने आपको शशांक आसन करवाया था, जिसमें आपने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रख के फ़ोरहेड को फ्लोर पे टच किया था। दिस हेल्प्स यू रिड्यूस एंग्ज़ायटी, मेक यू फील मोर काम, आपको शांत करता है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को गुस्सा आता है आजकल, दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। हम्म। तो जब शशांक आसन करते हैं, शशांक आसन में तो आप आधे-आधे घंटे तक बैठा दीजिए, इट्स वेरी गुड फॉर देम। तो आप शशांक आसन में बैठाइए। शशांक आसन में मैं आपको रीज़न भी बता देती हूँ, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, बच्चों के हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन होता है, वो ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से उनको थोड़ा-सा गुस्सा आने लगता है, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं। इसीलिए जब आप शशांक ओके। आसन में बैठते हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस सही होता है और बच्चा शांत होने लगता है। तो इसके बाद मैंने आपको शशांक आसन बताया था
एंड देन वी प्रोसीडेड विथ TTK. हम खड़े होके TTK किए थे. फर्स्ट वन वाज स्पाइन हाँ। स्ट्रेचिंग, फिर हमने साइड स्ट्रेचिंग किया था और फिर हमने ट्विस्ट किया था. So these were group of 3 asanas that we learned today. And then we did balancing asan. Balancing asan जो आपके ब्रेन को और आपके फिजिकल बॉडी पोस्चर को बैलेंस करता है. इट इज कॉल्ड एक पाद प्रणामासन, जिसमें हमने एक फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड इट विद लेफ्ट लेग. हम पहले लेफ्ट लेग में खड़े हुए थे, फिर हम राइट लेग पे खड़े हुए थे, एंड वी फोल्डेड आवर हैंड्स एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फिक्स्ड पॉइंट. इसके बाद हमने किया था सूर्य नमस्कार, जो सबसे अच्छा आसन होता है अमंगस्ट ऑल द आसन. एक बात Yeah. और बता देती हूँ, ऐसा भी होता है, ऐसा बोला जाता है कि 72,000 आसन का रिप्लेसमेंट सिर्फ सूर्य नमस्कार हो सकता है. सोचिए कितना वंडरफुल होगा. तो सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर्स होते हैं, मैंने आपको क्लास पे भी बताया है आज के सेशन पे. अगर आपको और अच्छे से देखना है, आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखिए, योगा विद आराधना. उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे. आपको ब्रेथ के साथ पोस्चर्स को परफेक्टली कैसे करते हैं, आप वहां से भी सीख सकते हैं, या आज का रिकॉर्डेड सेशन आकांक्षा आप डालने वाली है अपने चैनल पे. या ये रिकॉर्डिंग परफेक्ट, अवेलेबल रहेगी. ओके. परफेक्ट. तो आज की रिकॉर्डिंग आकांक्षा अपने चैनल पे भी डालने वाली है, आप वहां से भी देख सकते हैं. तो सूर्य नमस्कार जरूर कीजिए. सूर्य नमस्कार के बाद हमने सीखा शवासन. शवासन रिलैक्सेशन होता है, जिसमें हम दोनों लेग्स और दोनों हाथ को सेपरेट करके अपने ब्रेथ पे फोकस करते हैं और रिलैक्स करते हैं. शशांक आसन के बाद जब आपका बॉडी रिलैक्स हो जाता है, यू कैन गो विथ 2 प्राणायाम. फर्स्ट वन इज नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें हम alternate nostril breathing करते हैं. And next one is Bhramri pranayam. It is also called humming bee pranayam, जिसमें you have to block your ears and you have to make humming sound while exhaling. आप normal inhale करके exhale करते समय humming bee का sound produce करते हैं. And then we ended everything with doing a good palming. आप जब palming करते हैं, आपका हाथ heated up होता है, आप उसे अपने eyes पर लगाइए. इससे आँखों को भी आराम मिलता है. पढ़ाई करते-करते, कंप्यूटर देखते-देखते आपका आँख भी थक जाता है. तो जब आप पामिंग, मैंने आपको एक बार बोला, आप 3 बार से 10 बार भी कर सकते हैं. इससे ये आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है. एंड एट लास्ट डू 2 to 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन टू स्टार्ट विथ. फोकस ऑन योर ब्रेथ. आप अपने ब्रेथ को यहाँ पे फील कीजिए. एंड वन बोनस टिप फॉर यू, लास्ट में सेल्फ पॉजिटिव टॉक कीजिए. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है. अगर आपको कोई चीज, आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो बोलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं और कॉन्फिडेंट होती जा रही हूँ. दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक. और एक सेंटेंस मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने लिए भी फॉलो की हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट. मतलब अगर आप जब तक नहीं कर लेते, जस्ट फेक इट कि आपके पास है वो चीज, एंड इट विल डेफिनेटली कम टू यू. राइट आकांक्षा? Exactly. True. So that's the summary from our end. आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या एक्सपीरियंस होता है. Please do comment us and let us know कौन सा प्राणायाम, कौन सा आसन आप करने जा रहे हैं. पर्सनली तो मैं रिकमेंड करूंगी कि सारे आसन, सारे प्राणायाम्स आपको करना Yes, ही चाहिए. एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन उसके वंडरफुल रिजल्ट्स. absolutely. सुमन, सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. और आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने समय निकाला. अपना कीमती समय आप जॉब कर रहे होगे या बिजनेस में होगे या अपना रेस्टिंग टाइम आज आपने हमको दिया है. एंड दैट इज योर स्टेप अहेड फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड. Yes, absolutely. सो ऐसे ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में. टिल देन एंजॉय पेरेंटिंग एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. गुड बाय. टेक केयर. बाय बाय. Bye everyone. Thank you for your time. Bye bye. Bye. Take care. Bye bye. Bye everyone. Thank